Good morning, students. Today we are going to start with the actual research, the strategy by defining problem first. So our chapter name is problem definition, the foundation of business research. So today we are going to start from the scratch, actual working. Prior to this, we have already set the complete stage for business research, what is business research, ethical issues, and so many other things. Let us start with the introduction first. Importance of starting with a good problem definition. So, what do you mean by problem definition? So, identifying our problem, and if we are able to express that particular problem, if you are able to express that particular problem into a proper statement or understandable statement, easy statement, then it will become our problem definition. किस चीज का सॉल्यूशन निकालना है वो अगर हमको अच्छी तरीके से पता है और उसको स्टेटमेंट के रूप में अगर हम प्रॉपरली लिख पाते हैं तो उसे प्रॉब्लम डेफिनेशन कहते हैं. So completely this chapter looks at this important step in research process more closely. Some useful tools are described that can help to translate the business situation into relevant actionable research and objective. सो रिसर्च स्टेटमेंट हमारे जो रहेंगे उस पे से ही हमको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर रिसर्च में क्या होने वाला है, इसका लॉजिकल एंड कहाँ पे होगा. एक्शनेबल रिसर्च. सो रिसर्च too often takes the blame for business failures when real failure was really management's use of its own company situation. बहुत बार ऐसे होता है कि रिसर्च पे ब्लेम किया जाता है कि रिसर्च टीम ने प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया और प्रॉपर हेल्प नहीं किया, जबकि मैनेजमेंट हम लोगों ने काफ़ी देखा है कि मैनेजमेंट किस चीज़ से एग्री होता है, किस चीज़ से नहीं होता है, इवन दो द रिसर्चर इज कमिंग विद द फैक्ट्स. बट फाइनली ब्लेम तो किसी को करना रहता है, रिसर्च को ब्लेम होता है. बट रिसर्चर को अगर अपना प्रॉपर एम मिल जाए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल जाए, प्रॉब्लम डिफाइन करके अच्छे तरीके से रखा गया है, तो वो वहीं पे एक्सप्लेन करेगा उसका प्रोज एंड कॉन्स. यहाँ पे एक केस स्टडी का एग्जांपल लिया गया है, involving companies as big and successful as Coca-Cola Company, RJ Renault, and Ford. While the researcher has some to say in what actually he studied, remember that the client, either the firm's management team or an outside sponsor, is the research customer, and the researcher is serving to the client needs through the research. In other words, when the client fails to understand their situation or insists on studying on irrelevant problem, the research is very likely to fail. I'm taking a pause to make you understand. See, there are so many good stories of good companies like Coca-Cola and Ford explained at some place in chapter 6. They have given with proper research how the big company can be. But there are some companies in the past also because of wrong situation and they are doing research on their irrelevant problem. We are talking about problem definition. So which what is irrelevant problem? मतलब आपका जिस चीज से कंसर्न नहीं है, मतलब आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, फिर भी आप एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन पे रिसर्च कर रहे हो. आपका प्रोडक्ट पॉपुलर है, ओके, आपके प्रोडक्ट में रोबस्टनेस है और आपका दूसरा क्वालिटी एस्पेक्ट है, प्राइस एस्पेक्ट पे आप रिसर्च नहीं कर रहे हो, तो आप गलत जगह पे रिसर्च कर रहे हो, तो वो रिसर्च आपके प्रोडक्ट में सेल्स में कोई बूस्ट करने वाला नहीं है. ओके. सो देर आर सम एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल्स इन हिस्ट्री. अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छा नहीं रहेगा, आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट इर्रिलेवेंट रहेगा, जो चीज़ आपको करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हो आप, तो फिर आप लोगों का रिसर्च गलत जाएगा. दैट्स वाई
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है गुड प्रॉब्लम डेफिनेशन को. दैट इज व्हाट आवर टॉपिक इज. In this chapter, we use the term problem definition. We realize that sometimes this is really opportunity seeking. Why opportunity seeking? Because पूरे प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए पूरा प्रॉब्लम स्टार्ट टू एंड अंडरस्टैंड होना चाहिए, तो ही प्रॉब्लम का स्टार्टिंग स्टेटमेंट आप रख सकते हो. हाँ, एंड रिजल्ट भले ही आपके फेवर में आए या ना आए, दैट इज डिपेंड, बिकॉज वो रिसर्च का पार्ट है. फॉर सिंप्लिसिटी, the term problem definition is adopted here to refer the process of defining and developing decision statement and the steps involved in translating into more precise research terminology, including set of research objective. So ये problem definition में सिर्फ title of the research नहीं रहेगा, objectives भी define किए जाएंगे. It will be useless if it presents results that simply are deemed irrelevant and do not assist in decision making. अगर वो ऑब्जेक्टिव का कुछ फाइंडिंग नहीं होता है जिससे डिसीजन मेकिंग नहीं होगा, तो आपका प्रॉब्लम डेफिनेशन भी रिलेवेंट है और रिसर्च भी रिलेवेंट है. It can be harmful for both because wasted resources and because it may misdirect the company in fewer direction. So obviously, अगर आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रॉपरली नहीं रहेगा तो मिस डायरेक्शन रहेगा कंपनी की तरफ. Problem complexity. Ultimately, the quality of business research in improving business decision is limited by the quality of problem definition stage. So उसमें simplicity रखना ज़्यादा ज़रूरी है, but understanding problem complexity is also important कि how complex it is, understand it properly and state in problem statement with simplicity. Okay. This is far from easier stage of research process. Indeed, it can be the most complex. यहाँ पे एक डायग्राम आपको हेल्प कर रहा है, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस हाउ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कैन बी. Okay, on the other hand, one hand situation is there, and on the other hand research objectives are there. So let us talk about this particular point. Just read it out. What is easier? The situation is recurring routine, मतलब रोज या रेगुलर या फिर वीकली या बाय मंथली ऐसे प्रॉब्लम्स आपको आते हो, ऐसी सिचुएशंस आती है और उसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए प्रॉब्लम आसान होता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाना, बिकॉज आपको पता रहता है कि प्रॉब्लम क्या है और वो बार बार हो रहा है, तो आप लोग भी उससे फेमिलियर होते हो और आपको उसके बारे में डिटेल्स पता रहता है. दूसरा है, बहुत ही बड़ा चेंज हो गया, ड्रामेटिक चेंज का मतलब यहाँ पे कोई बड़ा चेंज हो गया तो ठीक है. तीसरा है, अगर आपको पता चल रहा है कि किस रीजन से हो रहा है, सिम्टम्स अगर आप लोग आइसोलेट कर रहे हो, रीजन बिहाइंड हैपनिंग द रॉन्ग थिंग्स इन द कंपनी, तो तब वो आसान हो जाता है, बिकॉज पहले से आपको पता रहता है कि रीजंस क्या है. सिम्टम्स आर कंसिस्टेंट, वो भी एक इम्पोर्टेंट है. कंसिस्टेंट है मतलब बदल नहीं रहे. ओके. तो भी उससे डील करना आसान है, मतलब जो रीजनिंग है वो पता नहीं आज अलग है, कल अलग है, परसों अलग है, ऐसे नहीं होना चाहिए. कब सिचुएशन डिफिकल्ट होती है रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने के लिए या फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, नई सिचुएशन है तो, बिकॉज अगर उस चीज का हमको एक्सपीरियंस ही नहीं है तो उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करना और उसके ऑब्जेक्टिव सेट करना डिफिकल्ट जाएगा. ओके. देन सिचुएशन इज असटल, दैट मीन्स नो ड्रामेटिक चेंज, सब समथिंग इज कंसिस्टेंट और कुछ नहीं हो रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है. सिम्टम्स आर स्कैटर्ड, मतलब आप लोग उसको देख नहीं पा रहे हो, आइसोलेट नहीं कर पा रहे हो, एक जगह पे सारे सिम्टम्स आपको नहीं दिख रहे, स्कैटर्ड है. सिम्टम्स आर एम्बिगुअस, मतलब क्लियर नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है और पता नहीं है कि वो सिम्टम्स है या नहीं है. तो अगर ऐसा सिचुएशन आपके बिजनेस सिचुएशन में रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा किसी को भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करने के लिए और ऑब्वियसली उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाने के लिए. अब सिचुएशन पे डिपेंड है कि कोई प्रॉब्लम आपके कंपनी में या कोई रीजन आपके कंपनी में आता है
तो सिचुएशन का फ्रीक्वेंसी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ये सिचुएशन मतलब ज़रूरी नहीं कि बुरी सिचुएशन हो, कभी कभी अच्छी सिचुएशंस भी होती है, कभी कभी अच्छे इंसिडेंट्स भी होते हैं। तो हम लोगों को रीजनिंग भी करना है, लेटेस्ट से अचानक से हमारा प्रोडक्ट सेल बढ़ गया, तो हाँ कंपनी को भी पता होना चाहिए कि इस रीजन की वजह से प्रोडक्ट सेल बढ़ गया। तो मेनी बिजनेस सिचुएशंस आर साइक्लिकल। साइक्लिकल मतलब वो कुछ ड्यूरेशन के बाद रिपीट होती है। तो साइक्लिकल बिजनेस सिचुएशन लीड टू रिकरिंग बिजनेस प्रॉब्लम्स, बार बार जो प्रॉब्लम्स आते हैं, बिकॉज दिस प्रॉब्लम्स कैन इवन बिकम रूटीन। इन दिस केसेस इट इज easy to define problem and identify the types of research that are needed. In some cases problem are so routine that they can be solved without any additional research. आपको हमेशा का प्रॉब्लम पता है कि कैसे आना है। जैसे आपका वाटर टैप का लीकिंग हो रहा है, आपको पता है, तो उसके लिए आपको अलग से रिसर्च करने की जरूरत नहीं, उसके जगह पे आप लोगों ने कुछ चीज उसको बांध दी, बात खत्म। ओके। रिकरिंग प्रॉब्लम कैन इवन बी ऑटोमेटेड थ्रू कंपनीज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। मतलब आप लोगों को स्पेशल रिसर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो रूटीन है, आपको सारी चीजें उसके इन एंड आउट पता है। तो उसके लिए अलग से रिसर्च मत करो, आपको उसका सॉल्यूशन भी वहीं पे पता चल जाएगा कि डेली ऐसा होता है, तो हाउ वी आर गोइंग टू टैकल इट। फॉर एग्जाम्पल प्राइसिंग प्रॉब्लम इवन ऑकर रूटीनली। ओके, लोगों को लगता है ज्यादा है कम है। जस्ट थिंक अबाउट हाउ द प्राइस ऑफ गैस फ्लक्चुएट्स व्हेन सेवरल स्टेशंस आर लोकेटेड विद इन साइट ऑफ ईच अदर। आप लोग देख सकते हो गैस के प्राइसिंग का कैसे इश्यू हो जाता है। जैसे गैस के प्राइसिंग का भी नहीं बोल रहा हूँ, ये पेट्रोल की भी बात कर रहे हो। अगर आप इंडियन पेट्रोल पंप पे जाओगे तो अलग है, भारत पेट्रोलियम पे अलग जाओगे तो अलग है, रिलायंस गैस तो पेट्रोल, रिलायंस का पेट्रोल पंप है, देर आर 4 और 5 कंपनीज है जो इंडिया में पेट्रोल बेचती है, लेकिन वहाँ पे 1 2 3 रुपए का फर्क रहता है। पेट्रोल महंगा हो गया, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, बट मेरा काम यहाँ पे उस पर बात करने का नहीं। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि वही का वही उनमें डिफरेंस रहता है। सो दैट इज कॉल्ड एज प्राइस प्रॉब्लम, जो रूटीनली ऑकर होता है जो कॉम्पिटिटर कंपनीज रहते हैं उनके लिए। सिमिलरली ऑटोमोबाइल कंपनीज, एयरलाइन कंपनीज, कंप्यूटर कंपनीज, नेम जस्ट अ फ्यू, फेस रिकरिंग प्राइस इशू। बार बार उनको प्राइसिंग के इशू आते हैं, बिकॉज कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स है एक दूसरे के, और वो ये अपने एक प्रोडक्ट का प्राइस एक फिक्स करते हैं, तो दूसरा अपने प्रोडक्ट का प्राइस कुछ और फिक्स करता है। ओके। So because these situations reoccur so frequently, companies are having consistent look on the market pricing and address them, they address them routinely। कम ज्यादा करते रहते, डिस्काउंट डिस्काउंट चलते रहता मार्केट में। सो फॉर देम इट बिकम्स अ रूटीन, बिकॉज उनको कंपटीशन में भी रहना है, क्वालिटी प्रोडक्ट भी देना है, तो जहाँ जरूरत है वहाँ पे प्रोडक्ट के प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं। लेट अस से आई विल गिव यू माय ओन एग्जांपल। On 2 examples, when I want to purchase a laptop, I started looking back 4 months before. So before 4 months, that particular product with different cost. Okay. So after 2 months, different cost. After that, again, when I want to purchase on the day, that is different cost. So in that, the सरप्राइजिंगली पार्ट इज दैट कि कभी कभी वो लैपटॉप का प्राइस कम भी हुआ एक बार, और एक बार बढ़ भी गया। सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि प्राइसिंग कंपटीशन की वजह से कमी होता है, ऐसा नहीं है। जब लोगों को पता चलता है कि शॉर्टेज है और लोगों का डिमांड ज़्यादा है, तो कंपनीज ऐसे में प्राइसिंग भी बढ़ा देती हैं। ओके। नॉर्मली दूसरा एग्जांपल है कि डीमार्ट, सॉरी, ऑनलाइन जब आप अमेजोन पैंट्री या फिर किधर तो भी परचेस करते हैं, कोई प्रोडक्ट आप ऐड करते हो आपके लिस्ट में, कार्ट में, और फिर कुछ दिनों के बाद आप उसको ऑर्डर करते हो, तो बाद में आपको पता चलता है कि यार ये प्रोडक्ट जब आपने ऐड किया था उसकी प्राइस कुछ और थी और आज उसकी कुछ और है। दिस, इसके हिसाब से, मार्केट के रेट के हिसाब से फ्रीक्वेंटली प्राइसिंग इश्यूज को डील किया जाता है। वो रूटीन रहता है, इसलिए उसको रिसर्च नहीं किया जाता है, इमीडिएटली डिसीजन लेकर प्राइस कम या ज़्यादा किया जाता है। So decision makers know how to communicate them to researcher, and researcher know what data are needed. Most pricing decision in airline industries are automated based on sophisticated demand model। एयरलाइन इंडस्ट्री का यहाँ पे एग्जांपल लिया है। The model takes into account fluctuations in travel pattern based on the time of year, time of the day, degree of competition for the particular route, and many other factors.
At the one time, these decisions were based on periodic research report. Now the information is simply fed into decision support system and generate pricing schedule. So before I complete this एयरलाइन का एग्जाम्पल प्राइसिंग का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हाउ फ्रिक्वेंटली उनका प्राइसिंग चेंज होता है और किस तरीके से डिपेंड रहता है. अगर आपने देखा रहेगा कि मुंबई से दिल्ली जाना है तो किसी दिन वो 1200 में भी अवेलेबल था. लेकिन अगर आप वीकेंड में जाना चाहोगे, किसी छुट्टी के दिन जाना चाहोगे, किसी ओकेजन पे फेस्टिवल के दिन जाना चाहोगे तो वो 5 6 7 हज़ार. और टाइमिंग पे भी है, अगर ऑन टाइम आपको चाहिए तो 20 30 हज़ार तक उसका टिकट जाएगा जाता है. तो इस तरीके से उनका डायनामिक प्राइसिंग रहता है. तो अगर आप लोग बहुत 2 3 महीने पहले अगर आप बुक करते हो तो आपको शायद वो 2 3 थाउजेंड के अंदर ही आपका टिकट हो जाएगा. ओके, वेल इन एडवांस जिसे कहते हैं. लेकिन अगर आप ऑन टाइम बुक करते हो तो आपको वो बढ़ते बढ़ते जाता है. It is interesting that one factor is not that is not very important in the many of this pricing decision is the cost involved in flying someone from point A to point B. Indeed, some passenger pay fare much higher than actual cost. मतलब एक ही प्लेन पे बैठने वाले लोग उस दिन किसी ने ज्यादा पे किया रहेगा, किसी ने कम. So indeed, some passengers pay fare much higher than the actual cost and other pay fare much lower than the actual cost involved in getting them to their desired destination. Because किसी ने पहले इन एडवांस बुक किया था तो उसको कम में गिरा प्राइस, और किसी ने एकदम ऑन टाइम पे एंड मोमेंट पे बुक किया है तो उसको काफी ज्यादा प्राइस. तो एक ने 3 हज़ार पे किया और हो सकता है दूसरा पैसेंजर 30 हज़ार पे करके आगे बढ़ रहा हूँ. ड्रामेटिक चेंजेस जो हम लोगों ने वहाँ पे सिचुएशंस बात की है डायग्राम में, वो सारे हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे. When sudden change in business situation takes place, it can be easier to define the problem. For example, if Dell's business, वहाँ पे केस स्टडी है, कंपनीज के नाम है, had increased sharply at the beginning of the year, मतलब इस पर्टिकुलर कंपनी का बिजनेस स्टार्टअप ईयर में बढ़ गया. The key factor of study could be isolated by identifying other factors that have changed in that same period. It could be that very large trucking contract had been obtained. उन्होंने क्या किया है कि अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए या फिर उसका ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत ही बड़ा ट्रक कॉन्ट्रैक्ट किया था, इसलिए उनके प्रोडक्ट कस्टमर के पास रीच हो रहे थे, इसलिए उनका बिजनेस सेल्स बढ़ा. तो आप इस रीजन को आइसोलेट कर सकते हो. और दैट करंट कस्टमर इज ड्रामेटिकली इंक्रीज विद देयर डिस्ट्रीब्यूशन नीड विच डीलैंड इज बेनिफिटिंग. आपने ट्रकिंग का वो कॉन्ट्रैक्ट किया स्टार्ट ऑफ द ईयर, इसलिए वो ट्रक के थ्रू आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से कर पा रहे हो, इसलिए आपका बिजनेस बढ़ गया. तो आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता है. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एक्चुअली, बट व्हाई द सेल्स हैज इंक्रीज, बिकॉज आपने ट्रक कंपनी से एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट किया. In contrast, when the changes are subtle, and they take effect on over long period of time, it can be more difficult to define actual decision and research problem. Detecting trends that would permanently affect the recruitment challenge that Deland faces can be difficult. It may be difficult to detect beginning as such a trend, even more difficult to know whether such trend is relatively permanent or simply temporary occurrence. तो जरूरी नहीं कि ओवर द ईयर अगर कोई एक प्रॉब्लम आ रहा है, ओके, ड्रामेटिक चेंज नहीं हुआ, बड़ा नहीं हुआ, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो इस साल आ रहे हैं, वो अगले साल आएंगे कि नहीं आएंगे, इफ यू आर नॉट श्योर, तो फिर हम लोग उस पर रिसर्च करके कोई आउटपुट लेकर क्या फायदा. मतलब हमने आउटपुट लाया और पता चला अगले साल से वो चीज हुई ही नहीं बिजनेस में. तो वो भी एक इश्यूज है प्रॉब्लम डेफिनेशन में. हाउ वाइड स्प्रेड आर दिस सिम्टम्स. सिम्टम्स जिसकी वजह से आप लोग रिसर्च करने वाले हो, जिसके ऊपर से आप डिसाइड करने वाले हो कि आपको रिसर्च कैरी करना है या नहीं, और फिर उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करना है या नहीं, और फिर उसके ऊपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना है. तो यू नीड टू फर्स्ट नो कि ये कितने जो सिम्टम्स है वो अच्छे रहे या बुरे रहे,
फर्दर रिसर्च, वो कितने वाइड स्प्रेड फैले हुए हैं, कितना कितना मतलब दिस इज नॉट अ जोग्राफिकल लोकेशन, कितना वर्क आपका इफेक्ट हो रहा है इससे. The more the scattered any symptoms are, more the difficulty is to put them together into some coherent problem statement. In contrast, firms may sometimes face situation in which multiple symptoms exist, मतलब जहाँ पे multiple symptoms हो रहे हैं, but they are all going, all pointing to the same specific business area. Yes, symptoms बहुत है लेकिन reasoning point एक ही है. For instance, an automobile manufacturing company may exhibit symptoms such as increased complaint about cars handling, increased warranty cost due to repairs, higher labor cost due to inefficiency, and lower performance rating by consumer advocates such as Consumer Report. All of these symptoms point to the production department, क्योंकि ये सारा उनका एरिया है, उनका प्रॉब्लम एरिया, तो वहां पे रिसर्च का प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहेगा प्रोडक्शन के बेस पे, और वहीं पे आप लोगों को करेक्शन करना पड़ेगा. This may lead to the research question that deal with the supplier manufacturer relationship, job performance, okay, job satisfaction, supervisory support, and performance. Although having lot of problem in one area may not sound very positive. मतलब आपका कंपनी को आप लोग थ्रू आउट आप लोगों को एक नंबर बनाना है, इसलिए आप बिजनेस रिसर्च कर रहे हो, और आपके प्रोडक्शन में ही प्रॉब्लम आ रहा है किसी एक यूनिट में, so this is not a positive thing. It can be very helpful in pointing out the direction that is most in need of attention and improvement. In contrast, when the problems are more widespread, it can be very difficult to develop useful research questions. If consumer complaint dealt with handling and appearance of the car, and these were accompanied by the symptoms including consumers' belief that gas mileage could be better, that dealership did not have pleasant environment, it may be more difficult to put these scattered symptoms together into one or few research question. एक बोल रहा है कि जहां से उसने वो पर्टिकुलर बाइक परचेस किया वहां का एनवायरनमेंट प्लीजेंट नहीं है, मतलब अरेंजमेंट ठीक नहीं है. जैसे होटल बिजनेस के बारे में लोग बात करते हैं कि वहां पे बैठने के लिए रेस्टोरेंट में अच्छी जगह चाहिए, क्लीनलीनेस चाहिए, हाइजीन नहीं है. और दूसरा एक है कि आपकी कार माइलेज नहीं दे रही है. तो ये दोनों अलग अलग चीजें, एक प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, एक प्रोडक्ट को किस तरीके से सेल किया जा रहा है, सेल्स एनवायरनमेंट की बात कर रहा है कि आपका डीलरशिप का जो शॉप है वो अच्छा नहीं है. ये दो अगर आप लोगों ने रीजन किए तो इनका एक दूसरे से कोई जल्दी से रिलेशन नहीं बनता है. यस, दिस इज ऑल अबाउट ऑटोमोबाइल, बट एक डायरेक्टली बाइक से रिलेटेड है जहां से आप लोग कुछ चीजें परचेस कर रहे हो, माइलेज, और दूसरा है उसको बेचने वाला शॉप के एनवायरनमेंट के बारे में. सो दिस इज कॉल्ड एज स्कैटर्ड सिम्टम्स जो रिसर्च में. तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे. लेटर इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस सम टूल्स फॉर ट्राइंग टू एनालाइज सिम्टम्स इन एन effort to find out some potential common cause. Okay, so give me just 1 minute. Okay, I will be back. Okay, so I will be mute for a minute.
हेलो. रिग्रेट दैट. बिकॉज प्रणाली बेटा, मैंने अनाउंस करके गया था कि मैं 1 और 2 मिनट का पॉज ले रहा हूँ. तब शायद तुम सुन नहीं रहे थे. प्रणाली, ऑल ऑफ यू, नाउ यू कैन हियर मी. ओके. एक फोन था अर्जेंटली, उसको अटेंड करना था, इसके लिए मुझे पॉज करके जाना पड़ा लेक्चर. विल टेक सम अदर वर्क इज देयर, सो हम लोग एक टॉपिक ले लेंगे एंड देन वी विल एंड. ओके. सो लेट अस कंटिन्यू. आई विल शेयर अगेन. कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? ओके. So let us talking about symptoms ambiguity. So ambiguity मतलब आपका confusion हो जाता है कि clear नहीं है symptoms किस बारे में, किस वजह से. Ambiguity is almost always unpleasant. People simply are uncomfortable with uncertainty that comes with an ambiguity. Confusion हो जाता है because चीज़ों को हम लोग, reasoning को हम लोग understand नहीं कर पा रहे हैं. Similarly, an environmental scan of business situation may lead to many symptoms. अगर आप पूरा कंप्लीटली स्कैन करते हो बिजनेस का, तो बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे. उसमें से कुछ समझ में आएंगे, कुछ समझ में नहीं आएंगे कि ये सिम्टम्स है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहे या नहीं आ रहे. नन ऑफ विच सीम टू बी पॉइंट इन क्लियर टू लॉजिकल डायरेक्शन. इन दिस केस the problem area remains vague and the alternative direction are difficult to ascertain. So that means हम लोगों को डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि रिसर्च स्टेटमेंट क्या हो जाए, प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या हो जाए, और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाए. फॉर एग्जांपल, a retail store may face situation in which sales and traffic are up but margins are down. मतलब आपका सेल हो रहा है, ओके, और ट्रैफिक मतलब लोग भी ज्यादा आपके पर्टिकुलर रिटेल स्टोर में आ रहे हैं, बट आपके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो डाउन है. नाउ दिस इज वेरी एम्बिगुअस. ओके. प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बेचा जा रहा है, ओके, देन लोग भी काफी आ रहे हैं और प्रॉफिट कम हो रहा है. क्या हो सकता है? अभी आप बताइए, किसी भी एक रिसर्च में, किसी भी एक शॉप में या कहीं पे भी कोई भी जाएगा, तो इसका तो प्रॉफिट मार्जिन ही होना चाहिए. सो ये एम्बिगुअस है. क्या प्राइसिंग प्रॉपर नहीं किया गया, प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा था और आपने प्राइसिंग में किया, या फिर डायनामिक मार्केट के हिसाब से आप लोगों ने कॉस्टिंग प्रॉपरली नहीं की है. सो इन सो दिस इज द सिचुएशन. ओके. दे में और क्यों आता है इस तरीके से, क्यों होता है? दे may have decreased the employee turnover but lower the job satisfaction. In addition, there may be several issues that arise when with the supplier, none of this clearly positive or negative. So in this case, it may be very difficult to sort through evidence and to reach to definitive decision statement or at least to research objective. So ये थोड़ा सा difficult हो जाता है to make sure कि क्या रीजन है. ओके. क्योंकि लोग आ रहे, सेल्स हो रहा है, तो उसके रीजनिंग क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, किस तरीके से आप लोग बात करेंगे. सेल्स हो रहा है और प्रॉफिट नहीं आ रहा है, निगेटिव है या पॉजिटिव है. सो दिस काइंड ऑफ एम्बिग्यूटी रहती है. तो ये डिफिकल्टीज है रिसर्च सिचुएशन में. आगे इसके सॉल्यूशंस भी बताएं कैसे हो रहा है. सो इन नेक्स्ट लेक्चर टुमारो वी विल स्टार्ट विथ प्रॉब्लम डेफिनेशन प्रोसेस. सो आई एम जस्ट ending today's lecture. Thank you very much for patiently listening.